जी बेटे. So learning objectives हैं बेटे chapter 4. We are going with fluid mosaic model. So let's see बेटे यहाँ specifications क्या हैं. So we have to describe and explain the fluid mosaic model, okay, including an outline of roles of phospholipid, cholesterol, lipids, proteins and glycoproteins. ठीक है? This one then outline the roles of cell surface membrane, including references to carrier proteins, channel proteins, cell surface receptors, and cell surface antigens. And finally, beta, we'll be talking about the process of cell signaling. Okay? So objective number 4.1 we are going to cover today, inshallah. The second one, beta, where we talk about the transport, okay, transport across the cell membrane. This we are going to cover in inshallah in lesson number 2. Okay, and because it includes some practicals also for your AS level. Okay, so these things inshallah we are covering in the next lesson. So for now, beta, let's start with this. चलो ठीक है. अब again बेटे like हमने भी touched upon the like structure of cell surface, but now बेटे we are going to do it in detail. So let's begin with this one. अच्छा अब in yesterday's lesson बेटे we did this electron microscope and we talked about differences in light microscope also. So now बेटे अब see, so what do you think बेटे would we be able to observe the cell membrane with a light microscope जबकि size is cell membrane के 7 nanometer. So do you think it would be visible with the light microscope? 7 Resolution याद है light microscope और electron microscope की कल discuss की. No. Light microscope की resolution Yes, कैसे बेटे? it's up to 200 nanometer. ठीक है, जबकि electron microscope की थी around 0.5 Light nanometer. So now you think if the size is 7 nanometer, तो ये किस चीज में नजर आएगा हमें? Electron microscope. Electron microscope से, ठीक है. तो इससे cell membrane को देखते हैं. But cell membrane में जब electron microscope से भी देखते हैं ना, even if you have like let's say magnified it to 100,000 times, it actually seems as a 3-layered structure. So generally बेटा हम इसके लिए term use करते हैं, it's a trilaminar appearance. ठीक है. So 3-layered structure नजर आता है actually. Definitely उसकी एक upper layer होगी, ठीक है, एक middle layer होगी और एक ये वाली layer, ठीक है. But it's this thin 7 nanometer. But it appears as a thin, मतलब एक ऊपर की layer और जो ऊपर और नीचे की layer जो है they appear as black lines, and then it seems like there's a gap in between. ठीक है. So this is how it shows like. भी आगे मैं आपको किसी डायग्राम में दिखा दूंगी, but this is how it looks like. ठीक है. अच्छा, what else? अच्छा हाँ, so they have given the details also. So this gives you 2 dark lines which are heavily stained on either side of the narrow pale interior. अब ये जो darkened side होती है तो generally बेटा इस जो आपकी upper and उसकी lower layer होती है, there are proteins embedded in it also. ठीक है. So because of that it appears darker. And we know that membrane is partially permeable and it controls exchange between the cell and its environment. Okay, so this generally, and see with here they're showing thin lines are the cell membrane. So ये dark color की lines आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. So here they're showing you the cell membranes. but खैर इसकी detailed structure हम आगे देख लेंगे. अच्छा, let's talk about this is bit what we'll talk about in cell membrane. ठीक है. We know कि it's a bilayer. ठीक है. अभी right now we're talking about the cell membrane. मतलब हम generally सारे structures का अलग-अलग discuss करेंगे. तो थोड़ा-थोड़ा अगर तुम्हें recall है previous lesson से बेटे, it's a bilayer. It means it consists of 2 layers. So क्या-क्या चीजें थी उसमें, if you can recall by looking at this diagram बेटे? So it has a phospholipid external layer with a hydrophilic nature. Hydrophilic heads. ठीक है. Good. ठीक है. So it is facing the extracellular fluid as well as the intracellular fluid. Fine. जी बेटा. What else is there? It has glycopod. What are these structures बेटे? I can't exactly remember the term. Hydrophobic tails. Hydrophobic tails, yes. Okay. And there are like in each phospholipid head you will find 2 of those with it. So those are known as fatty acid chains. ठीक है. अभी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. But चलो ठीक है. It's a good start. Let's start.
So we have a phospholipid bilayer, okay, which has a hydrophilic head. Okay, so these are two, one facing the exterior, one facing the the interior side of the cell. And these hydrophobic tails are actually facing each other. So that's how it forms this lipid bilayer. Achha, what other structures we are looking at here? These are the proteins. So they are actually embedded at distances. So if you look at this plasma membrane from the top, it gives an appearance of a fluid mosaic model. Okay? So this is how this term of fluid mosaic model was coined directly. At every distance, but you'll be able to look at these like as such like stones are fixed between the layers. Okay? So proteins there are different types of proteins. There are certain types which will actually span the entire this diameter of this membrane. इसके लिए हम term use करेंगे intrinsic protein. Okay? So they are actually crossing this lipid bilayer through and through. And some will be known as peripheral protein. For example, ये वाला. ठीक है, तो slightly embedded मगर completely उसको cover नहीं कर रहा है. So these are known as extrinsic proteins. ठीक है, या peripheral proteins ही बोलते हैं. So intrinsic, ठीक है, and then proteins are of different types also. So these ठीक है, are one type of protein, and these are better known as channel proteins because they have this like channel through that some ions actually can go in and out. Water can go in and out, but every like particle or we have water or for example for every ion also would have their own respective channel protein बेटे. ठीक है, so हर एक channel के through हर चीज नहीं गुजर सकती. So if for example अगर it's a water channel, so its name would be aquaporin. ठीक है, अब for example potassium is coming from outside to inside the cell, तब हम इसको बोलेंगे potassium channel ion. ठीक है, so they are named accordingly. So it's ठीक है, they are channel proteins. We call them as transport proteins also, क्योंकि इसी के through transport हो रहा है in and out. ठीक है, अब हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे. But a few more things left here. So you can see bit of cholesterol also. So at every little distance you will be looking at cholesterol. Cholesterol is exclusively bit found in animal cells. ठीक है, plant cells में cholesterol नहीं होता. There are different type of stros which give us the same appearance, but cholesterol you will only find in the animal cell, and it is absent in plant cells. It is absent in prokaryotes also. ठीक है, फिर you might be able to look at these branches also. These are carbohydrates. So these carbohydrate chains can attach to protein. ठीक है, so this gray structure that you're looking at, it can attach to protein. So we will call it as glycoprotein. And if it attached to the phospholipid bilayer here, so we will call it as a glycolipid. ठीक है बेटे? So these are just the general features. We are going to talk about everything in detail. Is it clear to here बेटे? अच्छा. ठीक है, let's talk a little bit about the fluid mosaic model. So we know बेटे कि membranes, they are vital because they're actually controlling what goes in and out of the cell, and it is separating the cell from internal and external environment. So this is bit of what their basic function is. They're separating internal from the external environment. अब internal environment में बेटा, if you look at the cell, and we have already done the cellular organelles, we notice बेटा कि even the cell organelles in eukaryotic organisms have their own membranes. ठीक है, we talked about mitochondria, we talked about chloroplast, they had their own functions going on. ठीक है, so they have their own membrane. अब वो membrane का structure exactly same है. अगर हम यहाँ पे plasma membrane का structure पढ़ें, तो यही same structure बेटा वहाँ mitochondria के membrane में भी है, यही same structure chloroplast के अंदर भी है. ठीक है, so membrane का structure same है, और that's the reason बेटा cell के अंदर भी, तो क्योंकि like materials in and out pass out हो रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें through that membrane will be able to go in and out. क्लियर हो गया बेटा ये चीज? ठीक है, अच्छा. अब substances बेटा, like since this membrane is partially permeable, so there are different mechanisms that will be used for the passage of materials. So diffusion is one process, ठीक है, through which like contents can go in and out. Osmosis, active transport. ठीक है, and we will talk about these in detail जब हम second lesson इसका करेंगे. अच्छा, for now understand one thing कि ठीक है, cell, ठीक है, this is the diameter of the cellular membrane. ठीक है, it's like range होती है around somewhere you would find written as 10 nanometer also. ठीक है, so that's why it is visible under an electron microscope, but again बेटा magnification बहुत हमें high रखनी पड़ेगी. और fluid mosaic model say what else does it help to explain? It helps to explain the whole processes of this passage of nutrients in and out of the cell. So passive and active transport, cell to cell interactions, cell signaling. Acha. Acha, since like fluid mosaic model beta is important, so we need to know a little history.
It was actually coined by two scientists. ठीक है, उनका name था Singer और दूसरा था Nicholson. So they coined this fluid mosaic model in 1972. और इनकी hypothesis बेटा यही थी, because again paper में it can be a question of around 2 marks where they would ask you कि why it is called a fluid mosaic model. ठीक है, तो ये इस तरह से it is described as fluid because the phospholipids and the proteins, ठीक है, so use both the terms, they can move about by diffusion, and the mosaic describes the pattern produced by the scattered protein molecules when the surface of the membrane is viewed from above. Okay, so if they ask you, this is the reason you're going to write. Clear with it? Okay. Achha. This is the general structure. We have already talked about it. Let's just see कि बेटा अब सेल मेम्ब्रेन में चीजें क्या, अगर सबको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे. So we know कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, it is surrounding the cell, it is forming a phospholipid bilayer, ठीक है, but again because बेटा we will be constantly using these terms, so we need to know what they mean. So हमने तेज के लिए टर्म यूज किया था हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, अगर इसका हम लाइक साइंटिफिक इसका मीनिंग लें तो इट मींस हैविंग एन एवर्जन टू वाटर, ठीक है, हम कॉमनली यूज करते हैं वाटर फियरिंग, वाटर हेटिंग, ठीक है, but it's an aversion to water. And what happens because of that, ठीक है, it actually for example अगर कोई lipid droplet, I'll use the example, let's say तुमने पानी में डाला, ठीक है, so those droplets they coalesce and they form droplets in water. जैसे circular structures हमें पानी के अंदर उसके नजर आते हैं, ठीक है, because generally इसमें क्या होगा, जिसका lipid part होगा ना, it will be actually inside, ठीक है, तो it will curl up, तो ऊपर की जो साइड होगी that will be hydrophilic, इसीलिए वो वाटर के साथ कांटेक्ट में है, और जो अंदर वाली साइड होगी दैट विल बी हाइड्रोफोबिक. तो इसके लिए यूज जो टर्म आपकी बुक में भी किया हुआ है, उन्होंने मिसल्स या उसे माइसल्स भी बोलते हैं, बट दिस इज द टर्म यूज. आई होप आई एम यूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग, बट मिसल्स या माइसल्स उसके लिए टर्म यूज करती है, ठीक है, बट इट मेक्स दिस ड्रॉपलेट्स, सर्कुलर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है. सो हाइड्रोफोबिक इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद वाटर, ठीक है. हाइड्रो डेफिनेटली बेटा स्टैंड्स फॉर वाटर. Okay then, molecules that are hydrophobic, they have an aversion to water and are often referred to as water fearing. So the general terms हम उसके लिए ये वाला word use करते हैं. Hydrophobic समझ आ गया बेटे? ठीक है? Let's talk about hydrophilic now. ठीक है? अब hydrophilic again बेटा something that has to do with water, but this time बेटा we'll use the term it has an affinity for water. ठीक है? So it is the term used. Again, the terms definitely are being used ke how molecules react with water, but in this case they will be called as water loving. ठीक है, तो अगेन अगर वही मिसल फॉर्मेशन हुई है तो उसमें डेप्थ जो उसकी आउटर बाउंड्री है दैट विल बी हाइड्रोफिलिक, दैट्स व्हाई इट इज इन कांटेक्ट विद वाटर. मगर अंदर वाली जो होगी बेटे जहां पे आप ये इसकी टेल्स होंगी दैट विल बी हाइड्रोफोबिक. दैट्स द रीजन इट इज लाइक नॉट इन कांटेक्ट विद वाटर. ठीक है, वो कर्ल होके अंदर ही पूरा बना लेगी ड्रॉपलेट्स को. So are we clear with these two terms? Hydrophilic, hydrophobic. Okay. Achha. Then beta we will be using the term integral protein also. Okay. So we know that beta it has this hydrophobic and hydrophobic areas. But if you talk about a transmembrane protein beta generally वो वाली protein है. If we look at this one, जैसे ये वाली proteins हैं आपकी, yeah. इस तरह की प्रोटीन जैसे पूरा का पूरा कवर करिए, जैसे ग्रे कलर का पार्ट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, अब दे आर एक्चुअली बेटा लाइक गोइंग थ्रू एंड थ्रू दिस मेम्ब्रेन, जबकि हमें पता है कि ये वाली पार्ट हाइड्रोफोबिक है सेल्स की, इस प्लाज्मा लेयर की, ठीक है. सिमिलरली बेटा इन दिस केस हियर आल्सो. तो इफ दीज पार्ट्स आर हाइड्रोफोबिक, अगर ये जगह हाइड्रोफिलिक होती तो ये एंटर हो ही नहीं सकती थी, ये प्रोटीन तो वहां पे स्टे ही नहीं करता, ठीक है. तो इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का भी एक देयर इज लाइक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू देम. So let's just see what they are saying here. So these transmembrane protein also have hydrophobic regions. ठीक है, so ये hydrophobic regions जो होंगे बेटा they will be actually lying adjacent to the hydrophobic tails. इसी वजह से प्रोटीन वहां पे स्टे कर रहे हैं. तो हम वहां जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बेटा चेक देख रहे थे उस डायग्राम के अंदर, ठीक है. So the one that is next to the hydrophobic tail is actually hydrophobic, क्योंकि बेटा it's a protein, it is made up of hydrophobic amino acids. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं. सो हाइड्रोफोबिक रीजन्स दैट स्पैन कंप्लीटली द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन.
अब समझ आ गया बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन विल ऑल्सो हैव अ हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। तो अगर वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है बेटे, तो उसकी ये वाली जो साइड है दैट विल बी हाइड्रोफोबिक, ठीक है, द वन दैट इज एडजेसेंट टू दिस। Mm-hmm. Okay then these integral proteins again, since we know better, it penetrate the lipid bilayer from one side to next. These proteins, hydrophobic की हम बात करें बेटा, they control the entry and exit of specific molecules from the cell, ठीक है। We have talked about the hydrophobic end, but उनका जो ऊपर वाला part है बेटा, this one, the one which is next to this hydrophilic heads, this part is hydrophilic. अगर मैं इसका color change कर दूं just to show you, उसका जो ये वाला part है बेटा, जो हाइड्रोफोबिक टेल के साथ साथ होगा, दिस पार्ट विल बी, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड के साथ होगा, तो दिस विल बी हाइड्रोफिलिक, और ये वाले इसके सारे पार्ट जो ये हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है। तो एक ही प्रोटीन में यू हैव टू टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली कीप्स देम इन प्लेस, वरना तो मेम्ब्रेन से निकल जाएंगे बाहर। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? ठीक है, कुछ पूछना है बीच में? No. अच्छा, एक मिनट बस मैं जस्ट मेक श्योर कर लूं बेटा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन बेटा यहाँ पे दे हैव जस्ट शोन यू दिस पिक्चरल, उसकी डिपिक्शन दिखाई है इंटीग्रल प्रोटीन्स की, तो वी कैन सी बेटा इंटीग्रल प्रोटीन्स, और अब इसकी जो ये वाली साइड है बेटा, दिस इज हाइड्रोफोबिक, दिस साइड इज हाइड्रोफोबिक, और ये जो ऊपर है हाइड्रोफिलिक हेड्स के साथ, दिस इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स हैं, बट इनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बेटा ये, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको अगर हम कंपेयर करें ना उससे चैनल प्रोटीन से, सो सी बेटा, चैनल प्रोटीन्स में ऐसे होगा, वी नो कि दिस साइड इज हाइड्रोफोबिक, दिस साइड इज आल्सो हाइड्रोफोबिक। तो चैनल प्रोटीन्स का बेटा रीजन ये है कि ऐसी चीज विच एक्चुअली कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बारियर कैन गो थ्रू द चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो यू विल हैव दोस एक्वापोरेंस थ्रू विच वाटर कैन एंटर, क्योंकि वाटर पोलर है, ठीक है, ऐसा चार्ज पार्टिकल। इसके अलावा और भी जैसे पोटेशियम आयंस हैं या सोडियम आयंस हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स लिपिड बाइलेयर से तो जा नहीं सकते, बट दे कैन एंटर थ्रू द चैनल प्रोटीन। अब वो चीजें बेटा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो यहाँ जो अब चैनल प्रोटीन का जो ये वाली साइड होगी ना बेटा, दिस विल बी हाइड्रोफिलिक इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है। तो दिस हैज टू बी हाइड्रोफिलिक ताकि वो वाले पार्टिकल्स यहाँ से गुजर जाए। सो दिस साइड एंड दिस साइड, दिस इज हाइड्रोफिलिक, बट जो एक्सटीरियर है इसका ये हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। सो चैनल प्रोटीन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। सिमिलरली बेटा ये वाला साइड हाइड्रोफिलिक होगा और नीचे वाला हाइड्रोफिलिक होगा। समझ आ गई बेटे? ओके, अब सेंस बेटा फॉस्फोलिपिड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अच्छा यू डोंट नीड टू नो दिस, ठीक है। तुम्हें एक जनरल इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाउ डज इट लुक लाइक। सो फॉस्फोलिपिड बेटा, द नेम इटसेल्फ, लाइक इसमें पता है कि देयर इज डेफिनेटली बेटा अ लिपिड पार्ट एंड देयर इज अ फॉस्फेट पार्ट, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड के इट्स अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ द इनर लेयर ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो बेसिकली जब हम वही फॉस्फोलिपिड की बात करें तो वी नो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोफिलिक हेड व्हिच इज पोलर, पोलर मींस बेटा इज चार्ज्ड, और हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है, टेल होता है, दैट इज नॉन पोलर, इट इज नॉट चार्ज्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉस्फोलिपिड बेसिकली बेटा इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, इसके अंदर फॉस्फेट हेड है जो ये तुम्हें नजर आ रहा है, ये ब्लूइश था जो उन्होंने शो किया, ठीक है। इट हैज ग्लिसरॉल व्हिच इज दिस पार्ट हियर, और फिर इट हैज टू फैटी एसिड चेन, दिस एंड दिस, ठीक है। सो ग्लिसरॉल के साथ एक फॉस्फोलिपिड अटैच हो जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल इज एक्चुअली अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वहां पे हम पूरी इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तभी हम ऐसे बेसिक उसको टच कर रहे हैं। So glycerol is a 3 carbon compound and it has 2 fatty acid chains. ठीक है, we are talking about phospholipid right now. So glycerol is a 3 carbon compound with 2 fatty acid chains joined to 2 carbons and a phosphorylated alcohol molecule. So generally जब glycerol के नाम से पता चला, all आखिर में जिस चीज में आ जाता है वो अल्कोहल होता है, ठीक है। So it's a 3 carbon compound. So just remember बेटा, it has a phosphate head, ठीक है, it has glycerol, ठीक है, and it has these 2 fatty acid chains. फैटी एसिड बेटा सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। अनसैचुरेटेड इस तरह की होगी, यहाँ पे जैसे ये इसमें किंक तुम्हें नजर आ रहा है ना इस तरह की, जो अनसैचुरेटेड टेल्स होंगी वो इस तरह करके शो होंगी, ठीक है। और जो फ्लूइडिटी है सेल उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स की वजह से, और जो आपकी सैचुरेटेड होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की होगी जैसे ये वाली है।
सो अनसैचुरेटेड में अगर हम स्ट्रक्चरल देखें फॉर्मूला बेटा, तो डेफिनेटली अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड्स नजर आएंगे, मगर सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा। तो मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड टेल्स हो सकते हैं, तो जहां पे इस तरह की किंकिंग तुम्हें नजर आएगी तो दैट इज वहां पे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल है। क्लियर है बेटा ये चीज? अच्छा, अब सिंगर निकलसन मॉडल वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन दैट, सो आई एम नॉट गोइंग देयर, कर लिया हमने। अच्छा, ये बेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली कि हाउ इट वाज आइडेंटिफाइड कि ये 1972 में जब उन्होंने डिस्कवर किया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सो व्हाट दे डिड वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक पिक्चर ली थी एंड वी कॉल इट एज अ फ्रीज फ्रैक्चर इमेज। फ्रीज फ्रैक्चर इमेज क्या है कि जैसे अपने सेल को फ्रीज किया, ठीक है, और देन फिजिकली एक्चुअली जो भी इसके स्ट्रक्चर है दे आर ब्रोकन अपार्ट। तो बायोलॉजिकली पूरा एंटायर प्रोसेस है, बट जब वो चीजें ब्रेक हो जाती है तो व्हाट दे सॉ वाज कि इसमें आपको ये जो बम्प्स नजर आ रहे हैं ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो की जो बम्प्स इसमें नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली व्हाट दे सेड कि दीज आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो अगर ये पूरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो बम्प्स एंड हेड्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर प्रोटीन। तो दिस इज हाउ दे रियलाइज कि इट्स एक्चुअली, जिसको उन्होंने लव टर्म यूज की थी, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, तो उसको उन्होंने फ्लैटन करके जब उसको ऊपर से देखा टॉप लेयर को, तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो उसकी ये लेयर है एंड दीज आर ऑल द बम्प्स दैट दे सेड गेट्स अ प्रोटीन। ठीक है बेटे? ठीक है, ओके then. Acha, and we have better talked about this. So just quickly, beta, will you name the structures that you see here? Tell me, beta, what is this part here? This one? This is the hydrophilic tails. Part underneath is the hydrophilic heads. The parts below are the hydrophilic tails, hydrophobic tails. Good. And These yes. yellow structures? Yellow structure में बेटे ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है। ये कोलेस्ट्रॉल है बेटे। कोलेस्ट्रॉल, हाँ कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर हाइड्रोफोबिक एरिया जो है वो इधर है और दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड उसका। अच्छा, व्हाट एल्स इज दिस वन बेटे, दिस ग्रीन पार्ट? This is the integral protein where the carbohydrate groups attach. तो हम इसे क्या बोलेंगे? Yes. Glycoprotein. ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, और जनरली बेटा जब ये इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाते हैं ना, तो इसके ऊपर एक लेयर बनती है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर लेयर बन जाती है सेल के ऊपर, तो इट डिसअपीयर, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एंड व्हाट इफ बेटा दिस कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड हियर टू दिस फॉस्फोलिपिड हेड, तो व्हाट विल वी कॉल दिस? Well, देखो यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट लगी हुई है साइड के साथ ग्लाइकोप्रोटीन। व्हाट इफ दिस कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड हियर, तब हम इसे क्या बोलेंगे? ये लिपिड बाइलेयर है ना, तो अगर लिपिड बाइलेयर में कार्बोहाइड्रेट लग जाए तो क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लफ्ज यूज करें ग्लाइको। So for lipid it will be a protein. नहीं, इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स ग्लाइकोलिपिड है ना बेटे। अगर यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड में लगी हुई है तो तुम उसको बोलो ग्लाइकोलिपिड। वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में लगी हुई है तो तुम उसे बोलो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ जो नीचे आपको दिखाया ना बेसिकली बेटा, ये इफ यू रिकॉल हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे जब हम सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि देयर इज अ साइटोस्केलेटन दैट गिव्स दिस स्ट्रक्चर टू द सेल। ठीक है, तो नीचे आपको ये दिखाया सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये सारा साइटोस्केलेटन है। हर सेल का कोई ना कोई शेप तो है, बेशक वो रेगुलर है इरेगुलर हो। ठीक है, तो उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द साइटोस्केलेटन। तो नीचे मैंने आपको वो शो किया जो ये स्ट्रैंड है। ठीक है बेटे, सेल मेम्ब्रेन भी है ना। अब सेल मेम्ब्रेन अगर किसी सेल को सराउंड कर रही है तो वो इंटैक्ट कैसे, वो अपनी पोजीशन पे कैसे स्टे कर रही है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो कोई तो चीज है ना जो उसको रोके हुई है, वरना तो वो नीचे कोलैप्स हो जाएगी। तो जो चीज है उसको रोका हुआ है दैट इज साइटोस्केलेटन। ठीक है बेटे, ओके ना। एंड देन बेटा द अदर डे वी टॉक्ड अबाउट के पेपर में आता है, दे आस्क यू टू ड्रॉ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एंड यू ट्राई टू ड्रॉ। सो
ट्राई किया था ना पैरेलल उसके वो बना के तुमने टेल्स और आई रिमेम्बर वी डिड दैट। ठीक है, बट ये आता है पेपर में, ठीक है, तो इसकी यू नीड टू प्रैक्टिस। और सिर्फ वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाने के बाद यू हैव टू बेटा शो दैट प्रोटीन वगैरह भी दिखाने पड़ते, ठीक है। तो ऑल द स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन along with the glycoproteins as well as the glycolipids, ये सारी चीजें वहां पे शो करोगे, ठीक है बेटे। और ये इसकी इंडिकेशन है, ठीक है। यू विल ड्रॉ individual phospholipid molecules using circles for the head and parallel lines for the tails, ठीक है। इस तरह आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ओके देन। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स का हमने बेसिक स्ट्रक्चर कर ही लिया था, बट यहाँ पे देख लो बेटा ये डायग्राम ज्यादा क्लियर है। इफ यू लुक एट दिस वन, तो लुक एट दिस पार्ट हियर बेटे, यहाँ पे देखो तुम्हें डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। सो दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जहाँ सिंगल है दिस इज सैचुरेटेड। तो जनरली क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, उसमें एक बॉन्ड बन जाता है फॉस्फेट के साथ। सो ठीक है, मगर हम इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरॉल एंड देन टू फैटी एसिड चेन, ठीक है। Okay, so we have already been talked about it. Phospholipids structurally contain two distinct regions. So this one here is known as a polar head, okay, and it has two non-polar tails, okay. The phosphate head of the phospholipid is polar hydrophilic. Therefore, definitely this part will be soluble in water. And fatty acid chains, they are non-polar, so they are insoluble in water. And yes, we have talked about कि अगर हमने किसी phospholipid को पानी में डाला तो ठीक है, इट विल एक्चुअली द हाइड्रोफिलिक जो इसके हेड्स होंगे दे विल फॉर्म लाइक पानी के साथ इन कांटेक्ट होंगे, हाइड्रोफोबिक दे विल मूव अवे फ्रॉम द वाटर। Okay, we got discussed this one. We have talked about missiles also, and we have almost talked about the phospholipid bilayers. Okay then. अच्छा, अब phospholipid में we were just talking about कि cellular organism है तो they are making compartments. तो थोड़ा किसी एक का मुझे फंक्शन बता दो बेटे। Recall any organelle and think about its structure and function. कोई एक चीज अगर रिकॉल करो, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया अगर ध्यान में आ रहा है। Mitochondria is it provides energy for ATP. हाँ, उसका स्ट्रक्चर कैसा था? Do you recall the structure with it? It had double layers. Yes, it had double layers, but the inner layers are folded. Good. ठीक है, और inner layer ही actually selectively permeable थी। No, I think both the layers are permeable. हाँ, नहीं, जो बाहर वाली थी it was freely permeable. Inner layer because enzymatic activity हो रही है respiration के अंदर, that is taking place in the inner mitochondrial layer. ठीक है। तो जनरली बेटा व्हाट वाज इट डूइंग, द लेयर, उसका फंक्शन तो वही है ना, सेलेक्टिवली परमेबल। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यू नीड सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है, सो दोस ओनली दोस पर्टिकुलर एंजाइम्स कैन एंटर द सेल, ठीक है। और सिमिलरली एटीपी बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगी, तो ठीक है, सो एवरीथिंग कैन नॉट गो इन एंड आउट, बट जस्ट जनरली के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बेटा, तो ऑल ऑफ दोस स्ट्रक्चर्स हैव फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग हियर इनसाइड दिस। अच्छा, सेकेंडली बेटा वी आल्सो टॉक्ड अबाउट लाइसोसोम, it had this particular function. So why is there a need for this membrane around the lysosome? Because it breaks down the old unwanted substances in the cell. It has this. The ones that die out. हाँ, इसके अंदर जो एंजाइम था वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था बेटे, कि अगर वो अपने ही सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा तो अब सेल को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सो देयर इज अ नीड फॉर ऑल दीज स्ट्रक्चर्स टू बी बाउंड इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So basically, they are simply telling you okay, why this plasma membrane is important. Okay, so we have talked about this, and ये मैंने कर लिया आपसे डिस्कस। चलो ये देख लो बेटा, ये चीज है जिसकी वजह से हम इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक एक तरह नहीं होती, तो दे कीप ऑन मूविंग, ठीक है। अब इसी के ऊपर अगर वो कार्बोहाइड्रेट के वो लगे हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के चेन्स में दे विल आल्सो मूव। सो दिस इज हाउ बेटा दे एक्चुअली लुक लाइक, क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह दिख रहा था, दे कीप ऑन मूविंग, क्योंकि ऊपर भी फ्लूइड है और अंदर नीचे भी फ्लूइड है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, और अगर देखो माइक्रोस्कोप में अगर ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो सी बेटा
आपको 2 ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं, तो ये आपकी ये फॉस्फोलिपिड उसकी ऊपर और नीचे की लेयर है, और बीच में हाइड्रोफोबिक जो है इस तरह से, जो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा वहां पे जैसे कुछ नहीं है, पेलर सी साइड है, बट वो हाइड्रोफोबिक एरिया है और ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक एरिया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है इसका। ठीक है बेटे, सही है, ठीक है, अच्छा। And I think we have talked about this, so let's just skip that. हमने बात कर ली है इस पे, and we have talked about the proteins also. ये हमने कर लिया। अच्छा, अब ना बेटा अब उन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्कस कर लिया। प्रोटीन्स क्या बेटे, सो वी जस्ट डिस्कस बेटे देयर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है, जो पूरी की पूरी मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन है, या हम उसे इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज में बी फाउंड इन द इनर लेयर और मोस्ट कॉमनली स्पैनिंग द होल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ठीक है, एक हमने पढ़ी थी बेटे पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल जो थी वो ऊपर वाली लेयर में लगी हुई थी, पेरिफेरी हमेशा बाहर वाली साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन लगी हुई थी, और फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि उसके साथ कार्बोहाइड्रेट चेन लगी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, वो पेरिफेरल कहलाती है। आपकी जो हमारी जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती है, एक तो ये प्रोटीन है जो थ्रू एंड थ्रू गुजर रही है, और कुछ प्रोटीन्स नीचे भी लगी हुई होंगी, इस तरह नीचे से यहाँ पे लगी होंगी तो करके, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, क्योंकि वो अंदर की तरफ लगी हुई, या दे आर नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आल्सो। सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर we just discussed के बेटा it has hydrophobic areas, it has hydrophilic areas. Hydrophobic areas will be adjacent to the hydrophobic tails, और hydrophilic जो होगा बेटा it will be towards hydrophilic heads. Okay then. और किस किस किस्म के प्रोटीन्स होते हैं बेटा, प्रोटीन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का क्या काम है, दे क्रिएट हाइड्रोफिलिक चैनल्स, ठीक है। सो जो चैनल प्रोटीन, अगर तुम्हें याद है जो हमने देखा था बीच में इस तरह का प्रोटीन बना हुआ था ऐसे करके, और बीच में उनके थोड़ा सा गैप था, ठीक है। तो दीज जो चैनल प्रोटीन्स है बेटा, दीज आर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। सो व्हाट दे डू, दे अलाउ आयंस, ठीक है, we just discussed about beta potassium ions and we talked about sodium ions also. So they allow ions and polar molecules. Polar molecules होते हैं बेटा charged particles. Okay? So they travel through the membrane. So अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं फिर 2 किस्म के होते हैं। अभी हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रही थी चैनल प्रोटीन, ठीक है, एंड सम ऑफ देम आर नोन एज कैरियर प्रोटीन्स आल्सो, ठीक है। तो इनकी 2 किस्म की प्रोटीन्स होते हैं। अगर ये अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और यहाँ पे देखो अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस चैनल प्रोटीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा दे हैव दिस हाइड्रोफिलिक चैनल। तभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस अबाउट कि ये वाली साइड जो होगी ये हाइड्रोफिलिक होगी, इसी वजह से चार्ज पार्टिकल उसके अंदर से जा रहे हैं, ठीक है। सो विल यू रिमेंबर दीस 2 टाइप्स बेटे, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, सही है। कैरियर प्रोटीन का मतलब बेटे डेफिनेटली कोई ना कोई चीज है जिसको कैरी कर रहे होंगे, तो वो थ्रू द सेल कैरी कर रहे होते हैं, या हो सकता है बाहर से सेल से कोई चीज, सेल के बाहर से कोई चीज अंदर लेके आ रहे हो, मगर क्योंकि एवरीथिंग बेटा वी नो कैन नॉट गो इन एंड आउट डायरेक्टली, तो वो इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और चैनल प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज स्पोर प्रोटीन्स। स्पोर डेफिनेटली बेटा उसके अंदर एक ओपनिंग है। Okay, then every transport protein is specific to a particular ion or a molecule. So we have better discussed that. हर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से हर एक चीज एंटर नहीं होगी, so जिस चीज के लिए वो है वही चीज एंटर होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ द सेल टू कंट्रोल विच सब्सटेंसेस एंटर और लीव। अभी क्लियर अबाउट दिस बेटे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का फंक्शन क्या है और हम किस चीज को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देन अगेन बेटा पेपर में दे कैन आस्क यू द डिफरेंस, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में भी डिफरेंस होता है, तभी हम आगे जाके इसका डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी बेटा व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ। सो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वी जस्ट डिस्कस बेटा कि दे हैव दिस हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजंस, एंड इन्होंने मेरे ख्याल से जो पिंक कलर का में दिखाया है दिस इज द हाइड्रोफोबिक एरिया, ठीक है, और जो ऊपर का पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक। सो दे स्टे इन द मेम्ब्रेन because the hydrophobic regions made from hydrophobic amino acids, ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा आंसर में, they are next to the hydrophobic fatty acid tails and are repelled by the watery environment on either side of the membrane. Then a second type of protein which we said कि बेटा is an extrinsic protein or a peripheral protein,
they are found on the inner or outer surface of the membrane. ठीक है, अब जनरली वैसे आउटर पे ज्यादा होती हैं. Many are bound to intrinsic protein. Some are held in other ways, for example, by binding the molecules inside the cell or to the outside. और यहाँ पे इन्होंने आगे हमें इसके स्ट्रक्चर दिखाए हैं. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड आपकी. ठीक है, बिकॉज दे कैन आस्क यू फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ठीक है, इनके ये सारे फंक्शंस हैं और हर फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन है. So these proteins, they serve as hormone binding sites. They serve as immobilized enzymes. Okay? They act in cell adhesion, cell to cell communication, channels for passive transport, pumps for active transport. So ये around 6 functions है बेटे. ठीक है, which they can ask you. कोई एक भी चीज आपसे पूछ सकते हैं, दो चीजें पूछ सकते हैं, but you need to know the description. So अब सबको जरा अलग-अलग बेटा हम डिस्कस करते हैं. Hormone binding sites, बेटा name काफी self explanatory already, but this site is exposed on the outside of the membrane क्योंकि hormone बेटा blood में travel करके आएगा. ठीक है, so hormone is outside extracellular environment में है, so they are exposed to the outside of the membrane. They allow one specific hormone to bind. ठीक है, based on the shape. तो again बेटा हर hormone का जो receptor होता है, it has this specific shape जो lock and key इसका mechanism होता है. ठीक है, तो जैसा उसका अपना शेप होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर होगा, ओनली देन इट कैन बाइंड टू इट. तो इसीलिए हर हार्मोन हर जगह जाके नहीं लग जाता है. हर हार्मोन के अपना टिपिकल टारगेट एरिया होता है. जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन को अगर जाके अटैच होना है स्केलेटल मसल में, तो वहीं जाके लगेगा. ठीक है, या उसको ग्लूकागॉन है, उसको जाके लिवर में जाके सेल में लगना, वहीं जाके लगेगा. ठीक है, सो हार्मोन बाइंडिंग साइट्स आर फाउंड ऑन द आउटसाइड. एंड देन व्हाट हैपेंस, वंस दिस हार्मोन एक्चुअली गेट्स अटैच्ड, a signal is then transmitted to the inside of the cell. ठीक है, उस हार्मोन के बाइंड होने से फिर अंदर सेल के अंदर सारी चेंजेस आएंगी. तो आगे जब हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग का पूरा सिग्नलिंग मैकेनिज्म, उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. बट हार्मोन बाइंडिंग का समझ आ गया कि बेटा फंक्शन है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब मेम्ब्रेन के अंदर देयर कैन बी इमोबिलाइज्ड एंजाइम. इमोबिलाइज्ड का मतलब है समथिंग दैट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट मूविंग. So enzymes which are located on the membrane, अब enzyme का काम basically क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करना. ठीक है, so they will either catalyze the reaction inside or outside the cell. तो इसका two way purpose है, ये अंदर भी काम कर सकती है, बाहर भी काम कर सकती है. ठीक है, depending on whether the active site is on the inner or the outer side of the membrane. Immobilized enzyme है बेटे. अब क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो अगर उस एंजाइम की वजह से सेल के बाहर कोई फंक्शन होना है, तो वो उधर एक्ट होगा. ठीक है, और अगर वो एंजाइम अंदर लगा हुआ है, तो अंदर लगने का मतलब डेफिनेटली बेटे सेल के अंदर ही हमें कोई ना कोई एंजाइमेटिक प्रोसेसेस चाहिए. ठीक है, सो दीज immobilized enzymes are generally grouped so that a metabolic pathway may occur. ठीक है, तो ऐसा होगा कि एक एंजाइम उसने दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट किया, उसने तीसरे एंजाइम को एक्टिवेट किया, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलेगी इसमें. क्लियर है बेटे ये चीज. अच्छा, अब लेट्स talk about beta cell addition. Cell addition again, beta definitely cell. This is sticking to some other cell also. So proteins from adjacent cell may hook together to provide either permanent or temporary connections. This forms junctions referred to as gap junctions and tight junctions. ठीक है, तो इस तरह भी होगा. तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होगा. ठीक है, और बेसिकली गैप जंक्शंस अगर हैं, ठीक है, सो जंक्शन में डेफिनेटली बेटा कोई ना कोई चीज ट्रांसफर हो रही होती है. जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर एक आपका जो एक्सोन है वो दूसरे से कनेक्टेड होता है, बट देयर इज अ गैप इन बिटवीन, जिसको हम लोग साइनैप्स बोल रहे होते हैं. ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो ठीक है, ये एक एग्जांपल है सेल एडिशन की. ठीक है, सो दे फॉर्म कनेक्शंस. ठीक है, सो दोज आर रेफर्ड टू एज गैप जंक्शंस या टाइट जंक्शंस. क्लियर हो गई बेटा ये चीज. अच्छा, चौथी चीज के सेल टू सेल कम्युनिकेशन. अच्छा, अब ये कैसे हो रही है. द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन हैव एन अटैच्ड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट which provides an identification label for the cell. So actually बेटा सेल टू सेल कम्युनिकेशन काम है ग्लाइकोप्रोटीन का. ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जनरली बेटा एक्ट कर रहे होते हैं एज एंटीजेंस आल्सो.
ठीक है. सो दिस इज हाउ दे कैन कम्युनिकेट. आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का अपना सेल है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल दे विल नॉट टर्न अगेंस्ट आवरसेल्फ. उन्हें पता है कि हमारा अपना एंटीजन है. ठीक है. बट कोई फॉरेन बॉडी का एंटीजन होगा तो दे विल एक्चुअली एक्ट अगेंस्ट इट. सो वो हो किस वजह से, इट इज एक्चुअली बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स बेटे. ठीक है. तो दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर अटैच्ड टू द प्रोटीन्स. समझ आ गई मेरी ये चीज? अच्छा. फिफ्थ जो है बेटा इसके अंदर, दैट इज चैनल्स फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. पैसिवली भी कोई चीज जा रही है तो वो ऐसे ही डायरेक्ट एंटर नहीं हो रही है, उसके लिए भी वी हैव चैनल्स देयर. तो चैनल्स नो वी नो कि दीज आर पैसेजेस. ठीक है. एंड दीज आर थ्रू द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. तो अभी बस बेसिकली जो हमने आयन चैनल्स की वहां पे पीछे एग्जांपल देखिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में. So each channel allows one specific substance to pass through from high concentration to low concentration. तो अगेन बेटा जहां ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां से चीज फ्लो करके लो कंसेंट्रेशन में आ जाएगी. सो दीज चैनल्स आर फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो पीछे जब हमने एग्जांपल हम लोग ये वाली डिस्कस कर रहे थे चैनल प्रोटीन्स की, दिस वन बेटे, तो ये जनरली बेटे पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे यहाँ पे. ठीक है. पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी. बट दीज चैनल आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, लाइक ये आपके चार्ज पार्टिकल्स के लिए. ठीक है. हर एक चीज इसके अंदर से एंटर नहीं होगी. क्लियर हो गया बेटे? ठीक है. और लास्ट है बेटा पंप्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो अब ये अगर ये पंप्स है बेटा तो यहाँ पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. सो पंप्स दे नीड एनर्जी एंड जनरली बेटा इट इज यूज फॉर एक्चुअली किसी भी चीज को हम उसकी अगेंस्ट इट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजते तो उसके लिए पंप चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर सेल के अंदर से तुम कोई फॉर एग्जाम्पल सोडियम को बाहर हमें निकालना है तो वी नीड पंप्स फॉर दैट. क्योंकि द थिंग इज बेटा सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है और सेल के अंदर सोडियम कम होता है. ठीक है. तो अगर सेल के अंदर ऑलरेडी कम सोडियम है और तुम कम सोडियम को ज्यादा सोडियम की तरफ भेजना चाह रहे हो, यू नीड एनर्जी फॉर दैट. So this process is known as active transport and you need pump and you need ATP for that. ठीक है. क्लियर हो गया बेटी ये चीज? तो ये 6 आपके फंक्शन हैं जो मतलब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये इन फंक्शन में काम कर रही है. तो दे कैन एक्ट एज हार्मोन बाइंडिंग साइट्स, दे कैन एक्ट एज इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स, सेल एडिशन में काम है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, चैनल्स फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट, चैनल्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. और अकॉर्डिंगली ही बेटा उनके फंक्शन है. फिर आप उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे अगेन अगर आपसे पूछना है क्वेश्चन में. तो दिस इज द उसकी डिटेल. क्लियर हो गया? तो बताओ बेटे आगे मूव करें. ओके. ठीक है. तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया बेटा? वी टॉक्ड अबाउट फॉस्फोलिपिड्स, हमने प्रोटीन्स की बात कर ली. ठीक है. अब सेल के अंदर और क्या चीज है? इसके अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है कोलेस्ट्रॉल आल्सो. Now remember beta cholesterol is a part of animal cell membranes. ठीक है. It is not found in prokaryotes and it is absent in the plant cells also. जी बेटा. ठीक है. अब animal cells they have cholesterol. Cholesterol का बेटा there is a very important role. It stabilizes, ठीक है, and it maintains the structure of this plasma membrane. ठीक है. तो यहाँ पे ये इसके स्ट्रक्चर को बिल्कुल मेंटेन कर रहा होता है. So it stabilizes, maintains the integrity. प्लांट सेल्स, अब रिमेंबर बेटा प्लांट सेल, प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बट देयर इज अदर कंपाउंड्स. ठीक है. स्टेरॉल्स होते हैं उसमें बट दे आर नॉट कोलेस्ट्रॉल. तो उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है. तो फंक्शन उनका सेम है बट इट इज स्पेसिफिकली नॉट कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. ओके. तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली अब हम इसके लिए बेटा टर्म क्या यूज कर रहे हैं? एम्फीपैथिक. तो इसका मतलब वही है कि इट हैज अ हाइड्रोफिलिक एरिया. ठीक है. जो इसका हाइड्रोफिलिक हेड है एंड इट हैज हाइड्रोफोबिक टेल. तो सिमिलरली बेटा जो ये तुम्हें पार्ट नजर आ रहा है दिस इज हाइड्रोफिलिक और इसका जो नीचे का पार्ट है दिस वन हियर बेटा दिस इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है. तो स्ट्रक्चर इसका मतलब अगर तुम इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखो तो सेम वही है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की है. इसी वजह से एक्चुअली स्टेइंग है. तो ऊपर वाले लेयर में भी है और नीचे वाले लेयर में भी है. ठीक है. बिकॉज अगर तुम एक लेयर की बात करते हो तो वी कॉल इट एज अ मोनो लेयर और हर लेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है साथ. ठीक है. सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल लाइंस अप विद द पोलर हेड. ठीक है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH है डेफिनेटली बॉन्ड, इट कनेक्ट्स टू द पोलर हेड मींस फॉर विद दिस वन.
ठीक है, and the rest of the molecule tucks in with the fatty acid chain. So this you can see with it. और हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होगा, बेसिकली स्टेबिलिटी से इसीलिए प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है बेटे? ओके, फंक्शन इज इंपॉर्टेंट बेटे। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फंक्शन क्या है? इट रिड्यूसेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन्स। ठीक है, वी सेड बेटे, अगर तुम इस डायग्राम को देखो, ये जो फैटी एसिड चेंज होती है ना बेटे, दे कीप मूविंग। ठीक है, तो जनरली क्या कर रहा होता है, इफ दे कीप मूविंग, तो इट जो आपके कोलेस्ट्रॉल है, इट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी एंड परमिएबिलिटी टू सम सॉल्यूट। अब हाउ इज इट डूइंग दैट? बेसिकली बेटा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिविटीज होती है। सो कोलेस्ट्रॉल विल अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। कहाँ चला गया? So it affects the fluidity of the membrane. ठीक है, एंड इसकी फ्लूइडिटी बेटा हर टेम्परेचर के साथ साथ डिफरेंट हो रही होती है। सो व्हेन द टेम्परेचर इज मॉडरेट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल विल रिड्यूस द फॉस्फोलिपिड मूवमेंट। ठीक है, विच रिड्यूसेस द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो मॉडरेट टेम्परेचर में फ्लूइडिटी को वो कम कर देगा। ठीक है, so when the temperature is moderate, cholesterol will reduce the phospholipid membrane, which reduces the fluidity. The location of cholesterol molecules prevents the close packing of phospholipids. So if you look at this diagram here again, बेटा ये एक साथ जब चिपक जाएंगे ना बेटा, तो they can freeze also. बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा, तो you can खुद सोचो ऑयल को क्या होता है, अगर ऑयल कम टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो घर में जो हमारे ये होते हैं, जो देसी घी वगैरह होते हैं, जम जाते हैं ना बिल्कुल। ठीक है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल का रोल है। ठीक है, क्योंकि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाती है, बहुत ज्यादा इसकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल उस चीज को भी प्रिवेंट कर रहा है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए तब ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, तो ये उस केसेस के अंदर भी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा है। वो उसको इतना फ्रीज होने ही नहीं दे रहा, क्योंकि अब देखो, अगर एक ये तुम्हारा वो है, ठीक है, इसमें और इसमें देखो गैप है और बीच में कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक दूसरे में इस तरह करके किंक नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर फ्रीज हो गए तो डेफिनेटली उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दे डू बेटा। सो दे प्रिवेंट द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम सॉलिडिफाइंग। अगर तो टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया तो सॉलिडिफाई नहीं होने दे रहे, और अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसे बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं वहां पे। तो इसीलिए हम इसके लिए टर्म का यूज करेंगे, बस स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको। समझ आई बेटे? ओके, अच्छा, अब क्योंकि एग्जाम में बेटा अगेन ये क्वेश्चन आपका आता है कि मेम्ब्रेन्स फ्लूइड, उनकी फ्लूइडिटी कम या ज्यादा किस वजह से होती है। ठीक है, तो एक जो आप रीजन वहां पे लिख सकते हो, सो मेम्ब्रेन्स बिकम लेस फ्लूइड। किस वजह से लेस फ्लूइड हो रही है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स एज द चेन्स पैक टाइटली टुगेदर, and therefore there is a high number of intermolecular forces between the chains. ठीक है, सो जनरली इसीलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो टेल आपको ऐसे किंग फॉर्म में नजर आ रही होती है, उसकी वजह से फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। मगर अगर सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही हो, जब जो कि सिंगल कोवेलेंट चेन जहां पर है, वो वाली मेम्ब्रेन्स लेस फ्लूइड हो जाती है। ठीक है, सो इफ द टेम्परेचर इज लोअर, molecules will have less energy, and therefore if they have less energy they will not move as such. ठीक है, so they will not move freely. This causes the structure to be even more closely packed, और इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा बेटे, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। समझ आई बेटे? तो क्वेश्चन आपका इस तरह आ सकता है कि मेम्ब्रेन्स लेस फ्लूइड किस वजह से हो सकती है, मेम्ब्रेन्स मोर फ्लूइड किस वजह से हो सकती है। तो ये हमारा रीजन था कि व्हाई दे कैन बिकम लेस फ्लूइड। ठीक है, तो लेस फ्लूइड का बेसिक रीजन क्या बेटे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लस अगर उसका कॉम्बिनेशन लो टेम्परेचर के साथ हो जाएगा तो इस वक्त दे विल बिकम लेस फ्लूइड। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? और वो बेसिकली मोर फ्लूइड किस वजह से हो रही है, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब दे विल बिकम मोर फ्लूइड। ठीक है, और जो जितनी अनसैचुरेटेड होती है दे आर लेस लाइट टाइटली पैक्ड, और जो चीज अगर कम से कम पैक्ड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम होंगी। सो अब थिंक बेटा, ऑलरेडी देयर इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी वजह से ऑलरेडी फ्लूइडिटी ज्यादा है, और अगर टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल विल हैव मोर एनर्जी,
दे विल मूव मोर फ्रीली, सो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा क्योंकि होम्योस्टेसिस सेल के अंदर भी हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मेंटेन हो रही है वहां पे आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है, वैसे कोलेस्ट्रॉल को सॉर्ट ऑफ वो किया जाता है कि जी खतरनाक है जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मगर ये इतना स्पेशल फीचर है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स का, ये नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन्स सही से मतलब डायबिटीज स्टे कैसे करेंगी, क्योंकि इतना फ्लूइड है, इतनी मूवमेंट है, तो वो तो लाइक एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगी। तो ये इसको बेसिकली इसको कनेक्ट कर रहा है। समझ आ गई बेटे? ओके, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा? वी टॉक्ड अबाउट फॉस्फोलिपिड, हमने प्रोटीन्स डिस्कस कर लिए, हमने कोलेस्ट्रॉल डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी थे। ठीक है, अब वो किस फॉर्म में थे बेटा? एक वो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में थे, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में थे। ठीक है, but many of the lipid molecules on the outer surface of the cell membrane, ठीक है, and probably all of the proteins have short carbohydrate chains, so we know better these are glycoproteins and they are glycoproteins, glycolipids. ठीक है, carbohydrate chain projects like antenna into the watery fluid. ठीक है, and if you recall बेटा इसका काम बेसिकली क्या था? सेल रिकग्निशन में इसका काम था। ठीक है, so अब since बेटा कार्बोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल है, तो इट विल एक्चुअली मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ठीक है, और इसकी वजह से भी सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो रही है। तो सेल को बहुत सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करी है। अंदर उसके अगर तुम लेयर की बात करो, वहां पे कोलेस्ट्रॉल ने उसको स्टेबलाइज किया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऊपर देखें, ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो है दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, तो ऊपर भी इसको स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, सो दिस कार्बोहाइड्रेट चेन दे फॉर्म अ शुगरी कोटिंग टू द सेल दैट इज नोन एज ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, and we have already discussed that these carbohydrate chains actually will help these glycoproteins and glycolipids to act as receptor molecules, ठीक है, which bind to particular substances at the cell surface. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना कि सेल के अंदर रिसेप्टर्स हैं, तो दे एक्ट एज सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इनके ऊपर आके केमिकल्स आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है मेरे? ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो बेटे, ग्लाइकोप्रोटीन, यस वी नो कि इट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, इट हैज कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड टू इट, और ये इसका बेटा रोल है सेल टू सेल रिकग्निशन। और सेल टू सेल रिकग्निशन है तो डेफिनेटली बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट इम्यूनिटी। तो अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने डिस्कस किया था कि एंटीजन की तरह सॉर्ट ऑफ अटैच है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख लो कि इन्होंने आपको डिफरेंट दिखाए कि दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर कोई टॉक्सिन भी जैसे है, ठीक है, सो टॉक्सिन कैन अटैच टू इट, रिकग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, वायरसेस, अब इवन बेटा इन सारी चीजों के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे इसके अंदर। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कि हर चीज ऐसे जाके नहीं अटैच हो जाती है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक रिसेप्टर टू दैट। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक्चुअली बेटा इट इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, सो टॉक्सिन इसीलिए आके इस पे अटैच हुआ, इसके लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर हुआ होगा। ठीक है, तो कभी कभी टॉक्सिन्स भी सेल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, देन सी दिस वायरसेस बेटा कल परसों ही हमने लेसन में पढ़ा था, इनफैक्ट कल ही पढ़ा था कि इट आल्सो हैव बेटा कनेक्ट टू द रिसेप्टर। सेम गोस फॉर बैक्टीरिया। तो आपको डिफरेंट दिखाएं इवन सेल। ठीक है, तो डिफरेंट दीज क्या कहना चाहिए इन सब चीजों को, सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस, दे एक्चुअली हैव देयर ओन रिसेप्टर्स, ठीक है, व्हिच आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ठीक है बेटे, तो ये फंक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन का एज सेल सरफेस रिसेप्टर्स, so they will provide a point of attachment. क्लियर हो गया बेटे ये चीज? Okay, let's talk about glycolipids now. अब अगेन यहाँ देखो, अब तुम्हें नजर आ रहा है इस डायग्राम में लिपिड के साथ ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ अटैच्ड है। So these are the lipids which have carbohydrate chains. They project out into whatever fluid is surrounding the cell. और जनरली बेटा अगेन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जनरली बेटे ये मोनोलेयर में, मोनोलेयर का मतलब है हम अभी यहाँ इन्होंने आपको लाइक सिंगल लेयर के अगर देखो ये वाली चीज, ठीक है, तो उसके साथ लगे हुए होते हैं जनरली ऑन द आउटर साइड। ठीक है, इसीलिए वो दे आर एक्टिंग एज रिसेप्टर्स। ठीक है बेटे, तो अभी हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम आगे इसकी बात करेंगे कि हाउ सेल सिग्नलिंग टेक्स प्लेस।
ठीक है, बट इसका जनरल ओवरव्यू के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देख लें, उसके बाद हम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे. All cells have an outer membrane, called a plasma membrane, which acts as a boundary between the outside and inside of a cell. Cell membranes are primarily made of phospholipids, which are large lipid molecules, similar to triglycerides. Like triglycerides, they contain glycerol and fatty acids, but they differ from triglycerides in that they have a phosphate group, rather than a fatty acid, attached to the third carbon of glycerol. The phosphate head of the molecule is hydrophilic, or water-loving. This means that it interacts well with water. The fatty acid tails, however, are hydrophobic, or water-hating, and do not interact well with water. Because of these unique properties, when placed in a liquid environment, phospholipids tend to arrange themselves into a phospholipid bilayer, so that only the hydrophilic heads interact with a watery environment, and the hydrophobic tails crowd inward, away from the water. The plasma membrane of a cell also contains other molecules that aid in its function. There are a number of different proteins embedded in a membrane, and they serve a variety of functions. Some are involved in the transport of substances across the membrane, while others help in cell-to-cell communication. Short chains of sugars are attached to the outer surface of some of these proteins, forming glycoproteins, which serve as recognition signals to other cells. Cholesterol is present in the membrane as well. Cholesterol lends support to the membrane and regulates fluidity, giving the membrane the general consistency of olive oil. The phospholipids, proteins, glycoproteins, and cholesterol are all present in the membrane as a flexible pattern, commonly referred to as the fluid mosaic model. Together, these components of the cell membrane allow the cell to interact with its external environment.